Hello students, in this lecture we are starting the Financial Accounting 1 for BCom semester 1. We are starting with chapter number 5, Issue of Bonus Share. Chapter number 5, Issue of Bonus Share, Unit number 3. So first we have to find the meaning, to understand the meaning of the bonus share. What do you mean by the bonus share? Bonus share means such shares which are issued to shareholders in proportion to their shareholding for which they are not required to make any payment. It means कि कोई भी शेयर होल्डर्स होता है उसका शेयर के प्रपोर्शन में एडिशनल शेयर मिलता है कंपनी की तरफ से, उसके बदले में उसे पेमेंट नहीं करना पड़ता है. एडिशनल बोनस में कुछ शेयर्स मिलते हैं टू प्रपोर्शन ऑफ द एक्वायर्ड शेयर होल्डर्स. तो जो भी शेयर होल्डर्स है उसके पास शेयर होल्डिंग होती है, उसके प्रपोर्शन में एडिशनल शेयर मिलता है कंपनी के द्वारा विदाउट एनी पेमेंट, दैट इज़ नोन एज बोनस शेयर. और कंपनी बोनस शेयर अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही इश्यू कर सकती है. Here one thing remember for the company, that company can increase the shareholders within the authorized capital limit. It cannot go beyond its authorized capital. If he want to increase the authorized capital, then the some steps required from the article of the memorandum of the company. But generally the company can increase the share capital within the limit of the authorized capital of the company. Then and only then the shares will be sanctioned and it can additionally give the bonus to the shareholders or a bonus share to the shareholders. Carefully remember, the company can only issue the bonus share out of the accumulated profit. If company wants to increase its share capital, there are particularly two ways: by issuing the additional share and by issuing the bonus share. First, issue of the further shares. When the company has not issued shares to the extent of the authorized capital, अभी तक authorized capital तक shares नहीं issue किए हैं, तो वो अपनी ऑथराइज कैपिटल के विद इन लिमिट में न्यू शेयर इशू कर सकती है और उसके रिगार्डिंग पेमेंट भी ले सकती है और शेयर इशू कर सकती है. और दूसरा वे है बोनस शेयर इशू करना. अभी हमने देखा बोनस शेयर का मतलब क्या है. द कंपनी गिव्स शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द accumulated profit and the shareholders are not required to pay. Such shares are called bonus shares. And this is the additional benefit for the shareholders, that they are not paying any kind of a payment and he acquire a rights or some acquire a shares and they got also a dividend on that bonus share also. So it is a benefit for the shareholders. Now as we discuss that, okay, कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है इसमें, कंपनी को पेमेंट भी नहीं मिलता है, बट शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर मिल जाते हैं, उसके ऊपर डिविडेंड भी फ्यूचर में होगा तो मिलेगा. बट यहाँ पे कंपनी क्यों ऐसा बोनस शेयर इशू करती है? तो नाउ वी आर सेइंग द रीज़न और ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द इशूइंग बोनस शेयर. कंपनी क्यों बोनस शेयर इशू करती है? रीज़न नंबर 1, व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव अ सफिशिएंट कैश रिजर्व टू पे अ कैश डिविडेंड. कभी कभी डिविडेंड के बिहाफ ऑफ बोनस शेयर इशू कर देती है क्योंकि उसके पास कैश रिजर्व नहीं होता टू पे a cash dividend. Second, when the company wants to strengthen its financial position by building the larger reserve which can be utilized for the repayment of the liabilities or the expansion purpose. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लार्ज रिजर्व क्रिएट करके उसका यूज़ पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी अगर और एक्सपांशन के लिए यूज़ करना होता है, तभी वो बोनस शेयर इश्यू करती है. When the company having the large reserve want to disclose to the outsiders as well as its shareholders the real in earning capacity of the business.
This will clear from this illustration. Example, a company has a share capital of rupees 5 lakh and general reserve is rupees 5 lakh. Now company make a profit of rupees 2 lakh, then it will 40% on its capital. But the company distribute in its general reserve as a bonus share. So share capital of the company will be 10 lakh and profit will be 20% of its capital. So this is the correct earning capacity of the company. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या समझाया है, जैसे कि शेयर कैपिटल 5 लाख है और जनरल रिजर्व 5 लाख है, राइट। और अगर कंपनी को प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ होता है तो कैपिटल जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का 40% हो जाएगा. बट इफ द कंपनी विल utilize the general reserve, that is accumulated profit, for the issuing the bonus share. Now the whole 5 lakh are used for issuing the bonus share. That means now the share capital will be rupees 10 lakh and the profit will be 20% of its capital. So it shows the correct earning capacity of the company. Here in this 40% it is only illusions, right? But the 20% shows the actual or earning capacity of the company. These are the 3 reasons why company issue a bonus share to its shareholders. Now, what are the sources of the bonus share? Bonus share के sources क्या होते हैं? A company can issue the bonus share out of the following. First, credit balance of the P&L account. As we have clearly written that it is used for the accumulated profit. So first is credit balance of the profit and loss account. Then second, general reserve or any other reserve which in appropriation of the profit. प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन एक्यूमुलेटेड के कोई भी रिजर्व होती है, उस रिजर्व में से भी हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट, बैलेंस ऑफ द डिबेंचर डेप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड आफ्टर द डिबेंचर्स आर रिडीम. अगर डिबेंचर रिडीम हो गए हैं और अभी भी डिबेंचर रिडम्पशन फंड और सिंकिंग फंड में कोई भी बैलेंस बाकी है तो भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. देन फोर्थ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. देन पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. एंड पॉइंट नंबर 6, कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व सच एज अ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इसका भी हम यूज़ करके बोनस शेयर इशू कर सकते हैं. So profit on the acquisition of the share, profit on the sale of the asset, capital redemption reserve account, share premium account can be applied only for the issuing fully paid up bonus share. Capital redemption reserve account and security premium account. This both are account only are used when we are issuing फुल्ली पेड अप बोनस शेयर. अब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर क्या होता है वो हम आपको थोड़ी देर बाद में समझाएंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है इसलिए. इट कैन नॉट बी यूज टुवर्ड्स मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स टू फुल्ली पेड अप. पार्टली पेड अप शेयर का फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए दिस टू अकाउंट्स आर नॉट यूज्ड. व्हेन इट इज अ फुल्ली पेड अप कैपिटल शेयर then you are issuing the bonus share, then and only then you can use this two account. First is capital redemption reserve account and security premium account. Now we are saying the methods of giving bonus shares. बोनस इशू करने के बोनस शेयर इशू करने के से कौन सी मेथड है? बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बोनस शेयर इशू करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है इश्यू ऑफ न्यू बोनस शेयर. दैट मीन्स अगर शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप हैं, यानी कि 5 लाख रुपीज़ है, 10 रुपीज़ ईच, फुल्ली पेड 5000 शेयर्स. तो जो 10 रुपीज़ शेयर पर शेयर है वो फुल्ली पेड अप है, कोई कॉल अनपेड नहीं है. और अगर उसे न्यू शेयर इशू करने होंगे तो वो न्यू जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज़ है मान लो, तो उसमें से 2 लाख रुपीज़ के न्यू बोनस शेयर इशू कर सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, बेसिक वी कैन अज्यूम दैट. देन सेकेंड, व्हाट वुड बी द सेकेंड मेथड?
सेकेंड मेथड इज मेकिंग द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। मतलब क्या हुआ, सपोज करो 5 लाख रुपीज की कैपिटल अमाउंट है, आउट ऑफ दैट शेयर के ₹10 है, 10 रुपीज़ का शेयर है, बट अभी तक 8 रुपीज़ पेड अप है। पेड अप के कैपिटल कितनी है, सिर्फ 8 रुपीज़। 2 रुपीज़ का जो कॉल है वो अभी बाकी है, यानी कि वो कॉल मंगवाया ही नहीं है या तो वो कॉल अनाउंस ही नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी इसे पार्टली पेड अप कहते हैं। 10 रुपीज़ का शेयर था, अब 8 रुपीज़ पेड अप है, यानी कि 2 रुपीज़ का कॉल है वो अनपेड है। तो जो पार्टली पेड अप कैपिटल है उसमें से 2 रुपीज़ हमें कॉल के मंगवाने पड़ते हैं, बट अब 2 रुपीज़ हम मंगवाएंगे नहीं, और 2 रुपीज़ का जो भी अनपेड अमाउंट है 2 रुपीज़, उसके हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। समझ में आया सबको? यहाँ पे फुल्ली पेड अप कैपिटल था 10 रुपीज़ का, फुल्ली हमें रिसीव हो गया था, बट यहाँ पे 8 रुपीज़ पेड अप है, यानी कि वो पार्टली पेड अप शेयर है, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे फुल्ली पेड अप में। यहाँ पे नए शेयर इशू नहीं होंगे, जो कॉल की अनपेड अमाउंट है वही हम एज अ बोनस दे देंगे, यानी कि शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होगा कि ये 2 रुपीज़ का कॉल है जो उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो अभी वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा नहीं, और वो बोनस की तरह वो पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 तरह की मेथड है कि आप नए से फुल्ली पेड अप कैपिटल शेयर है तो नए शेयर बोनस शेयर इशू कर दो विद द यूज़ ऑफ द एनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और अगर पार्टली पेड अप है तो उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन बोनस शेयर। बोनस शेयर कैसे फ्रैक्शन में इशू होता है। बोनस शेयर के प्रपोर्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर कैपिटल जितने शेयर हैं उसके प्रपोर्शन में ही बोनस शेयर इशू होते हैं। जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है प्रपोर्शन, दैट इज़ 4:1, दैट मीन्स जिसके पास 4 शेयर हैं उसे 1 शेयर मिलेगा, तो दिस इज़ द कॉल्ड प्रपोर्शन। देन दे आर होल्डिंग any 4 share will receive a 1 bonus share in their hold. Suppose I have 10,000 shares. I am holding a 10,000 share. तो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या है, 4:1। जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उससे बोनस शेयर कितना मिलेगा, 1। सो सपोज मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं तो मुझे कितने शेयर बोनस में मिलेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 4, 2,500 शेयर्स मुझे किस में मिलेंगे, बोनस शेयर मिलेंगे। समझ में आया? अब मान लो कि इक्वेशन वही है, जिसके पास 4 शेयर है उसे 1 शेयर मिलेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 10 शेयर हैं तो मुझे कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हो गया 2.5 शेयर्स, और शेयर कभी 2.5 नहीं होता है, या राइट, या तो 2 शेयर होते हैं या तो 3 शेयर होते हैं। ये 2.5 क्या होता है, तो इसे हम शेयर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर फ्रैक्शन। दिस इज द बोनस शेयर फ्रैक्शन व्हेन द fraction shares come into the point. So this is the fraction share. It is also called a bonus coupon. The fraction share can be disposed into any one of the following way. अब अगर 2.5 आ गया तो किससे डिस्क्लोज करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1, द सम इज पेड इन अ कैश टू द शेयर होल्डर्स। एडिशनल सम होता है वो कैश में पेमेंट कर देते हैं। देन द कंपनी में इशू अ फ्रैक्शन शेयर टू द शेयर होल्डर्स विद इन द इंस्ट्रक्शन दैट ही विल आइदर गेट द रिमेनिंग फ्रैक्शन शेयर टू मेक इन फुल शेयर, और उसको बोल दिया जाता है कि जो 0.5% का शेयर है उसका पेमेंट कर दे और इसको फुल्ली फ्रैक्शन में से फुल्ली शेयर में कन्वर्ट कर दे।
And third, a fraction share all are handed over to the trustee of the shareholders who will sell them in the market and after deducting expense. और जो भी फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है वो कंबाइन करके ट्रस्टीज ऑफ द शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. अल्टीमेटली वो शेयर मार्केट में सेल कर देते हैं. तो दिस इज हाउ द डील विद आवर शेयर फ्रैक्शन. नाउ we are going to show the accounting entry for issuing the bonus share. अब मेन पार्ट आया कि अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी. अकाउंटिंग एंट्री होती है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट दैट इज फॉर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ द बोनस टू द पेड टू द शेयर होल्डर्स. जितनी भी अमाउंट का हम बोनस शेयर इश्यू करते हैं फर्स्ट उसकी प्रोविजन करनी पड़ती है और प्रोविजन हम इस सोर्स में से ही कर सकते हैं. और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड शेयर कैपिटल ओनली यूज फॉर द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर. दैट मीन्स फॉर दिस पार्ट we cannot use this two accounts for the partly paid up to the fully paid up capital, right? So out of these sources we have to make the provisions, then and only then we will start the giving of the issuer share. And then second whenever we are issuing the new bonus share or we are converting partly paid up share capital to the fully paid up capital share. So regarding to each and every method, in this both method first entry should be the making of the provision availability on the basis of the availability of the credit balance of the account or sources of the bonus share. And then in the second entry is either we are issuing the shares or making the partly to fully paid up capital. So according to that the general entry will be dependent. तो पहली एंट्री आएगी प्रोविज़न की. प्रोविज़न किस में से करेंगे? जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं टू इश्यू अ बोनस है, चाहे वो पीएनएल हो, कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, या तो ये चारों एक साथ हो या तो कोई सिर्फ दो अकाउंट हो. जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं बोनस इश्यू के लिए वो हम करेंगे डेबिट. जस्ट बिकॉज कोई भी सोर्स होता है, रिजर्व होता है, उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, जब हम यूज़ करते हैं तो वो होता है डेबिट. तो कोई भी सोर्स होगा वो होगा डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट. तो जो भी पेमेंट होगी ये दोनों मेथड हैं. पहली एंट्री जनरल एंट्री मेकिंग द प्रोविजन दोनों के लिए सेम होगी कि जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो उससे डेबिट करो टू credit the two bonus to shareholders account, right? Now अब हम when bonus is utilized in issuing the fully paid up share, यानी कि ऑलरेडी fully paid up share है उसको हम बोनस शेयर दे रहे हैं. तो एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अगर प्रीमियम के साथ दे रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट. देन सेकेंड ऑप्शन पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट. जो भी कॉल का अमाउंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 2 रुपीज़ कॉल का अमाउंट जो हमने अभी तक नहीं मंगवाया तो उसे हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे. शो द शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. अब वो हो गया कॉल की अमाउंट हो गई जो पार्टली थी, अब वो फुल्ली पेमेंट हो गई और उसकी जो अमाउंट थी उसे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द बोनस टू द शेयर होल्डर्स अकाउंट. दैट इज बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अमाउंट टू शेयर कॉल अमाउंट. दिस आर द टू एंट्रीज फॉर व्हेनेवर वी आर पुटिंग द making the partly paid up to the fully paid up share. For both the method, the first entry will be provision and whatever amount the source we are using that is considered in the issue of the bonus share. तो आप देख सकते हो in tabular form that is making first entry is making for provision of the bonus share and second entry is issue of the bonus share. When we are using partly paid up share to fully paid up share, the first is making the provision, then making the call and using the bonus for paying call. So in this method only 2 entries will be there and in this method 3 entries will be there, right?
एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, बैलेंस शीट दिया गया है एक्स लिमिटेड का, इशू का करना है। पहले तो देख लेते हैं फुल्ली है या पार्टली है, तो देख लेते हैं 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि फुल्ली पेड अप शेयर है। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू अ बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर होल्डर्स, यानी कि जिसके पास 4 शेयर हैं उसे 3 नए बोनस शेयर मिलेंगे। फॉर दिस पर्पज इट इज़ डिसाइडेड टू यूटिलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000। बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के 1,20,000 यूज़ करने हैं आउट ऑफ द रिजर्व फंड एंड द बैलेंस आउट ऑफ द P&L अकाउंट, और रिमेनिंग बैलेंस P&L अकाउंट में से यूज़ करनी पड़ेगी। रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व फंड एंड द P&L अकाउंट में से हम यूज़ करेंगे। 3 पार्ट हैं, शेयर प्रीमियम फुल्ली यूटिलाइज करना है, देन 1,20,000 आउट ऑफ द रिजर्व फंड एंड द रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे हमें इशू करना है। पहले तो अमाउंट देख लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो प्रपोर्शन देख लेते हैं, जिसके पास 4 शेयर हैं उसे 3 बोनस शेयर मिलेंगे। जिसके पास 4 शेयर हैं उसे 3 बोनस शेयर मिलेंगे। तो टोटल शेयर्स कितने हैं? 4,000 इक्विटी शेयर हैं, तो बोनस शेयर कितने मिलेंगे? तो 3,000 बोनस शेयर। सो 3,000 इंटू 100 रुपीज़ का शेयर है, तो 3,000 इंटू 100 इट मीन्स 3 लाख रुपीज़ वी आर रिक्वायरिंग टू इशू अ बोनस शेयर। अब 3 लाख रुपीज़ हैं, वो हम किस प्रकार से सोर्स फाइंड करेंगे? तो पहले यहाँ पे दिया गया है सिक्योरिटी प्रीमियम हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं 80,000 रुपीज़। देन क्या दिया गया है? 1,20,000 आउट ऑफ रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड में से हम 1,20,000 निकालेंगे, तो ये कितना हो गया? 80,000 प्लस 1,20,000, ये तो सिर्फ 2 लाख रुपीज़ हुए। अभी भी 1 लाख रुपीज़ बाकी है। तो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम कहाँ से लेंगे? P&L अकाउंट में से। तो हम प्रोविजन करेंगे ये 3 सोर्स का यूज़ करके, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड P&L के इस अमाउंट में यूज़ करके हम प्रोविजन करेंगे। तो फटाफट से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री इज मेकिंग अ प्रोविजन। So security, reserve account and P&L account debit respected to this amount to bonus to shareholder account. So security premium account debit 80,000, reserve account 1,20,000, P&L account 1 lakh rupees, to bonus to shareholder account 3 lakh rupees. Now second entry will be the issue of the bonus share. अब issue शेयर करेंगे। So bonus to shareholder account debit 3 lakh rupees। अब इश्यू हो गए हैं तो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़। तो जब फर्स्ट मेथड पूछी जाएगी इश्यू ऑफ बोनस शेयर दैट विच इज़ अ फुल्ली पेड अप, तब हम ये 2 एंट्री करेंगे, मेकिंग द प्रोविजन एंड द इशू अ बोनस शेयर। दैट मीन्स इशू शेयर होल्डर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझ में आया? थैंक यू।